ایران نے کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرونز اور میزائل داغ دیا. ایمرجنسی نافذ. کویتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے رات گئے دشمن کے میزائل اور ڈرونز حملے روکے. میزائلز اور ڈرونز کو کامیابی سے فضا میں تباہ کر دیا. سنے گئے زوردار دھماکے دفاعی نظام کی کارروائی کا نتیجہ ہیں. کویتی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق ایرانی حملے میں ایئرپورٹ پر متعدد تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا. زخمیوں کی بھی اطلاعات ہیں. ایران نے امریکی حملوں کو جنگ بندی معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. تہران کا دفاع کا حق محفوظ رکھنے اور مستقبل کے حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ کویت اور بحرین ایران کے خلاف امریکی حملوں کے لیے براہ راست اور واضح ذمہ دار ہیں. ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے کویت بحرین کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. کسی بھی کارروائی کی صورت میں حملے کے اصل منبع کو نشانہ بنایا جائے گا. امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے ایک دوسرے پر حملے. امریکہ کی ایرانی جزیرے قشم میں فوجی تنصیبات پر حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ. امریکی سینٹکام نے کہا کہ قشم پر حملے کر کے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. کویت پر داغے 2 میزائل راستے میں گر گئے. بحرین پر داغے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے. حملے ایرانی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی. امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ. پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کو نقصان پہنچانے کی خبر درست نہیں. امریکی فوج نے ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا. جواب میں امریکی اور اسرائیلی جہازوں پر حملہ کیا. امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. ایک جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا. ابنا ہرمز کی سیکیورٹی متاثر کرنے کی قیمت امریکہ کو چکانی ہوگی. ایران کے ساتھ مذاکرات کے خاتمے کی خبریں غلط ہیں. ایران کے ساتھ بات چیت جاری. کوئی نہیں جانتا انجام کیا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے رابطے جاری. آج بھی بات چیت ہوئی ہے. یہ اطلاعات درست نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ نے چند روز قبل ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی. ایران کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی صورت ایک معاہدہ کیا جائے. ایران گزشتہ 47 سال سے اسی طرز پر معاملات چلا رہا ہے. امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے؟ امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر کاری بوکر نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایران کے معاملے پر آڑے ہاتھوں لے لیا. سینیٹر کاری بوکر کہتے ہیں ڈیل بھی ایسی جسے خود امریکہ پہلے کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا تھا. مارکو روبیو جواب دیتے ہوئے کہنے لگے امریکہ ایران جنگ ختم ہو چکی اور مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی جا رہی. صدر ٹرمپ کے بعد مارکو روبیو بھی پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینے لگے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملک کے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات. میاں محمد منشا، عارف حبیب، گوہر اعجاز اور دیگر ملاقات میں شریک. وزیر اعظم نے گفتگو میں کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات شامل کیے جا رہے ہیں. مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے شکر گزار ہیں. کاروباری برادری کا معاشی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم. رورل ایریاز میں، ہائی ویز میں، ان ساری جگہوں کے اوپر بہتر 4G اور 5G آئے گا. پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے. ان کا جو فوکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کی طرف ٹیکسیشن میں اور باقی طرف ریڈکشن دینا چاہتے ہیں. میکرو اسٹیبلائزیشن آئی ہے، وہ اس کی وجہ سے جو بھی اب فسکل سپیس بھی ملتی ہے اس کو اب آگے جو ہے سسٹینیبل گروتھ جو بھی پروڈکٹیوٹی انہینسنگ آپ کی ہیں میجرز جس سے کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھے اور ہم جو ہیں آگے سسٹینیبل گروتھ پہ جا سکیں. ایکسپورٹ گروتھ کی طرف جو پی ایم صاحب کی ویژن ہے اس کے اوپر یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹرز کے لیے ایسے انسینٹیوز آ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ گروتھ ہو سکے. توانائی بچت مہم کے سلسلے میں کاروبار بندش کے نئے اوقات جاری.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबार बंदिश के नए औकात जारी करने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकानें, मार्केटें, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हाल्स, मार्कीज, कमर्शियल इवेंट्स रात 10 बजे ही खत्म करने होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल, सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशंस पर औकात की पाबंदी नहीं। सूबाई हुकूमत को मकामी इंतजामिया को नए औकातकार पर अमल दरामद करवाने की सख्ती से हिदायत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान अमरीका मुआहदे में ताअतुल के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2.5% तक बढ़ गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $98.44 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96.32 फी बैरल पर पहुंच गई। मुरब्बन क्रूड ऑयल $97.82 फी बैरल पर आ गया। पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। सूबे भर में पहली मरतबा 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। 8,32,000 काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के लोन इस्तेमाल कर लिए। मरियम नवाज कहते हैं कि पंजाब के काश्तकार को माली खुदमुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना मेरा ख्वाब है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। इंतखाबी मुहिम उरूज पर, सियासी पारा हाई। इंतखाबात का सियासी दंगल सज गया। कॉर्नर मीटिंग, जलसे, जुलूसों, रैलियों का जोर। IPP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन दफातर में गहमा गहमी। गिलगित 2 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। असल मार्का दियामिर, गिलगित, अस्करदू और गजर में होगा। IPP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमने सामने। गिलगित इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। मैं समझता हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी है इस इलेक्शन को एक आइडियल इलेक्शन बनाना। और जो पंजाब पुलिस की तैनाती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी पंजाब पुलिस से भी गुजारिश है कि आप पंजाब वाला रवैया जो पंजाब की अवाम के साथ आप रखते हैं, वो यहाँ की अवाम और पंजाब की अवाम में बड़ा फर्क है। मैं खुद पंजाब से हूं और मैं समझता हूं कि आप ये हमें पंजाबियों के लोग इज्जत करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा काम न कीजिएगा जिससे यहाँ पंजाब की इज्जत को फर्क पड़े या हमारा दूसरे सूबों के दरमियान इख्तलाफात। और हमने कई इस खित्ते को एक अच्छा, ये एक भरपूर पाकिस्तान का अमीर तरीन खित्ता है। पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए कि ये गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का वीडियो बयान। कहा, GB एक हसास खित्ता है, मकामी अवाम के साथ एहतराम और जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूरी है। GB में पंजाब पुलिस की मौजूदगी से अवाम में खदशात हैं। इलेक्शन शेड्यूल के बाद वुज़रा को NOC जारी किए जा रहे हैं। वोटर लिस्टें कैसे तब्दील हो सकती हैं? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए अवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा है। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मियां नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा ही बदल दिया। गिलगित में मियां नवाज शरीफ को जो प्यार और इज्जत मिली, नाकाबिले फरामोश है। गिलगित के लोग नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करते हैं। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर धारता नजर आएगा। शेर का निशान जीत की फतेह है। वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। ना मैं फॉरवर्ड ब्लॉक से डरता हूँ, ना ही जो है मैं किसी की ब्लैकमेलिंग से डरता हूँ। हमारे जितने भी MPs हैं, कितने इलेक्शंस हुए हैं, एक MPA का वोट भी इधर उधर नहीं हुआ। इस दफा जो है सेनेट का इलेक्शन आएगा, बजट आएगा, जो चीज भी आएगी, बहाने के बहाने में MPs इंशाल्लाह ताला वोट डालेंगे और इसमें जो है कोई बात नहीं होगी। ये लेटर जो है, ये हमने तो नहीं देखा लेटर किधर है, वो दिखाएं, नाम दिखाए, किसने लिखा है। 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। फॉरवर्ड ब्लॉक और ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, पहले भी तमाम मेंबरान इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं, मुकम्मल वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने बायोमेट्रिक भी कराई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल मुजम्मिल असलम भी वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के हमरा।
पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की मतलूबा अफराद की फहरिस्त में बशीर ज़ेब का एक बड़ा नाम है और बार बार ये नाम आता है, लेकिन एक और एक्टर का नाम आज मैं अपने कोलीग्स के साथ आप सबके सामने रखना चाहूँगा और ये मैं चाहता हूँ कि आप इसे ऑब्जर्व करें। ये जुनैद नामी शख्स है। तो जुनैद कौन है? बशीर ज़ेब तो हम सब जानते हैं कि कलअदम BLA का कमांडर है। तो जुनैद जो है वो पर्दे के पीछे मौजूद एक अहम किरदार अदा करता है, जो एक नाम निहाद ह्यूमन राइट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप BYC कहते हैं, उनके लीडरशिप के साथ बराह रास्त जुनैद का उसका ताल्लुक भी रहा है। और साथ साथ ये भी इंकशाफ किया जाता है कि जुनैद जो है बशीर ज़ेब का राइट हैंड भी है और BLA का ऑपरेशनल कमांडर भी है। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। ये वो जंग है जो बारूद से ज्यादा नौजवानों के जहनों के साथ खेली जा रही है। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। बलूचिस्तान के नाम पर अलहदगी पसंद सियासत करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। 2018 में बशीर ज़ेब ने जब कलअदम तंजीम की कमान संभाली तो हालात मजीद खराब हुए। जुनैद बशीर ज़ेब का राइट हैंड है। आज दुश्मन सिर्फ गोली नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहा है। हम नहीं चाहते नौजवान पहाड़ों की तरफ जाएं। कलअदम तंजीमों ने जंग में खवातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहनाज बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जाती थी। कुकीन क्वीन अनमोल पिंकी और सहूलतकार के खिलाफ मंशियात केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने 8 मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए मुल्ज़मा अनमोल पिंकी की पेशी की इजाज़त दे दी। पुलिस दरख्वास्त के मुताबिक मुल्ज़मा को पेश करने से नक्से अमन का खतरा हो सकता है। उधर कराची पुलिस ने अनमोल पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अकाउंट ज़ीशान और सुहेल ऑपरेट करते थे। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का एक और अहम दौर इख्तिताम पजीर हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टॉमी पिगोट ने कहा है कि दोनों ममालिक के वफूद ने वाशिंगटन में मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत की। मुआहदे का मकसद लबनान की खुद मुख्तारी की बहाली और इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। अमरीका इन तारीखी मुज़ाकरात में सालसी का किरदार जारी रखेगा। इसराइली और लबनानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर कल होगा। जंगबंदी दावों तक महदूद हो गई। इसराइल के लबनान पर ताबड़तोड़ हमले रुक न सके। लबनान के शहर मरवानिया पर इसराइली हमले में खातून और 2 बच्चों समेत मजीद 8 अफराद शहीद हो गए। सेहोनी फोर्सेस ने तायर के अस्पताल पर भी हमले किए। 127 अफराद जख्मी हो गए। मार्च से अब तक शोहदा की तादाद 3100 से भी तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए। भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार को चैलेंज। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। भारत के अंदर बेतहाशा तजादात और गिरोहबंदियां। कॉकरोच पार्टी के आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ने का अंदेशा। भारत में कॉकरोच पार्टी की जैनजी इनकलाबी तहरीक जोर पकड़ने लगी। बानी कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिबके का भारत आकर तहरीक आगे बढ़ाने का ऐलान। कहा, खदशा है कि मुझे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं। और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात, 20 से जायद अफराद जख्मी। थरपारकर में बारिश और सक्खर में यालाबारी से गर्मी की छुट्टी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरात, रहीम यार खान समेत कई इलाकों में बारिश। नवाबशाह, सक्खर और मुहिरपुर, माथेलो में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया।